Good morning, student. Okay, now in the last video we have studied about the respiration. That what is the respiration, and I thought that you everybody understood it very well. Okay, so now in the respiration we have studied that the in the cells, the food when the food digested, then it is brought to the cell. Okay, it is brought to the each and every cell of our body, and inside the cell it is broken down into the carbon dioxide and water to release energy. Okay, and this process is known as respiration. Okay, we have studied about this respiration process. Okay, now in this video we'll study about the types of respiration. Okay, so now there are two types of respiration. Okay, aerobic respiration and anaerobic respiration. Two type of respiration is there. Okay, so now all the organisms including plants and animals and microorganism, all organism required energy. Okay, and this energy we get from the food. Okay, and food gives us energy when it combines with the oxygen, we can say. Okay, but some of the microorganisms respire in the absence of oxygen also. Okay, most of the we can say most of the okay organism require oxygen, okay, for the respiration process. But some organism, okay, some of the microorganism respire in the absence of oxygen. Okay, so depending on the presence or absence of oxygen, respiration is of two types. Okay, that is the aerobic and anaerobic. So you can see the firstly aerobic respiration. Aerobic, okay, in the name you can see aerobic. Aerobic mean the presence of oxygen. So this is in this respiration. This respiration take place in the presence of oxygen. Okay, presence of oxygen. Aerobic respiration. Okay, so now let's see what in this respiration. Okay, so the food is broken down, you can say, in the presence of oxygen. Okay, the food is their glucose. Food is in the form of glucose in our body. Okay, so in the presence of oxygen, okay, the food is broken down in the presence of oxygen, and they release what they release carbon dioxide, water, and energy. So this is the equation. This is the equation that glucose in the presence of oxygen inside our cells. ये हमारे सेल के अंदर की बात है. सेल के अंदर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, ओके, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा. और जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दिस एनर्जी वी यूज फॉर द टू डू द डिफरेंट एक्टिविटीज. ओके, तो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होगी तभी ये क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. ओके, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं. ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फूड से क्या होगा, कंबाइन होगा, क्या रिलीज करते हैं, बाहर क्या निकालेंगे, अगेन वी आर एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम मिरर के सामने कभी ऐसे करके माउथ से क्या निकालेंगे, गैस जो हम रिलीज़ करते हैं, गैस रिलीज़ करते हैं. तो विंटर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे मिरर पे धुंधला धुंधला सा ना, कुछ स्मोकी सा लग जाता है. वो क्या है, वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर. तो हम वाटर वेपर को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं ना. इट मीन वाटर रिलीज़ हो रहा है किस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और साथ में हमें एनर्जी मिल रही है ना. ठीक है, एनर्जी वी आर रिलीजिंग. तो दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन. Okay, so most of the organisms respire through the aerobic respiration. Now let's see the anaerobic respiration. Anaerobic mean anaerobic, without oxygen. There is absence of oxygen. बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. Okay, तो इन सर्टन ऑर्गेनिज्म ओनली. ओके, सर्टन ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक ईस्ट होता है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द ईस्ट. ओके, तो ईस्ट है, उसके अंदर क्या होगा, जो ब्रेकडाउन जो फूड होगा, फूड ग्लूकोज होगा, उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन क्या, उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है. और अब देखो उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो क्या बनता है, अल्कोहल. ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ओके,
गेट इट। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या है उसके, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है और एनर्जी भी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे वहाँ पर क्या था, हमारे वहाँ अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट्स, ओके, अल्कोहल। गेट इट। तो नाउ दे रिलीज, तो दिस टाइप ऑफ, एंड इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। ये स्मॉल, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज नहीं करते, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी को क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे, ओके। गेट इट। तो दैट इज अ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ध्यान रखिए, तो इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सॉरी, हमारी बॉडी नॉट ओनली इन द ईस्ट में ही नहीं, हमारी बॉडी में भी होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। गेट इट। हमारी जो मसल्स होती हैं बॉडी की, जो मसल्स होती है, जब हम ज़्यादा क्या करते हैं, व्हेन वी रन वेरी फास्ट, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी फील इन आवर, वी फील पैन इन आवर लेग्स, है ना, भागते रहते हैं हम, तो हमारी लेग्स में क्या होता है, दर्द होने लगता है ना। तो वो दर्द किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस टाइम पर, एट दिस टाइम, आर लेग्स मसल्स स्टार्टेड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वो उस टाइम पे क्या रिलीज करती, क्या करती हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है, ओके। तो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो उस टाइम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ओके। गेट इट। और क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ओके। क्योंकि हम भाग रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो इतना हार्ट हमारा जो है वो रेस्पिरेशन से इतना पंपिंग, हमारा ब्लड बार बार इतना ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है कि इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है ऑक्सीजन का। इसलिए हमारी उस टाइम पर क्या होती है, हमारी मसल्स स्टार्ट करती हैं क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करती हैं, और ठीक है। और क्या होता है, क्या बनता है प्रोडक्ट्स, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, ओके। गेट इट। तो आर मसल सेल ऑल्सो डू द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज आर मसल्स स्टार्टेड anaerobic respiration, okay, get it. So they produce the lactic acid, and this lactic acid accumulate in our muscles and causes the cramps during the heavy exercise. हमेशा heavy exercise के बाद में दर्द होता है muscles में। तो what is the reason behind it reason is lactic acid, okay, get it. Now let's see the difference between aerobic and anaerobic respiration, okay. So very simple, I think everybody knows now. First difference is it occur in the presence of oxygen. Anaerobic, it occurs in the absence of oxygen, okay. And now next is it involves the exchange of gases between an organism and outside the environment. And in the anaerobic respiration exchange of gases is absent. Exchange of gas, aerobic में क्या होता है, बाहर से O2 अंदर जाती है, CO2 हम outside, we exhale the outside. Like this in aerobic respiration there is no exchange of gases, okay. And the third is the aerobic respiration. It occurs in the cytoplasm at mitochondria, okay, inside the cell. In the 8th class we will study about the cells for the. Now let's see, only you have to keep in mind that the aerobic respirations occur in the, जो सेल होती है, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, ओके, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स होते हैं, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ओके, गेट इट। एंड नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा जो आपकी वो जो क्या हुई थी, रिएक्शन हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज किया था, H2O इज वाटर, ओके। एंड इसमें क्या हुआ था, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिला हमें, अल्कोहल, व्हाट वर द बाय प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, okay, and carbon dioxide and energy, okay. And in the aerobic respiration ATP is the एनर्जी करेंसी, ओके। हमारी जो बॉडी, मैंने बताया था आपको कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और एनाएरोबिक में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी होती है 36 एटीपी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी होती है ओनली 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ओके। अब नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल क्या है, सेल्स इन आर बॉडी, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारी सेल्स जो है हमारी बॉडी की वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट एंड मसल सेल्स, ओके, ईस्ट एंड हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, गेट इट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, गेट इट।